1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 कोरिंथियंस 11 चैप्टर 2 वर्स से 34 वर्स। साम्स 142 चैप्टर, 143 चैप्टर, 144 चैप्टर, 145 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। पहले कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 2 वचन से 34 वचन। वचन संहिता 142, 143, 144, 145 अध्याय तक हम पढ़ते जाएंगे। इंग्लिश में जब पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तब BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं खुदा। ये मैं पिता स्वीकार करती हूँ, मेरे खुदा यीशु के अलावा कोई प्रभुओं का प्रभु नहीं है, कोई बादशाहों का बादशाह नहीं है। वही सच्ची ज्योति है, वही परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है जो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। मेरे पाप को उसने, मेरे सारे गुनाहों को, मेरे श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया। जिस नरक की पनिशमेंट मेरे लिए रखी गई थी, यीशु मसीह वहाँ पर चला गया। उसने वो पनिशमेंट्स को सह लिया, परमेश्वर के क्रोध को उसने सह लिया, और परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा होता हुआ देखकर उसे जीवित करने वाला पवित्र आत्मा भेजा और उसे मुर्दों में से जिलाया गया। वही जीवित आत्मा आज मुझ में जीवित है, आज मुझ में काम कर रहा है, और ये वचन जीवित वचन है। इसके अंदर से मनुष्यों के हृदय बदल जाते हैं, उनकी डेस्टिनी जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई है उनको प्राप्त हो जाती है। और हम विश्वास करते हैं ये वचन हर एक के जीवन में, जो आज हम इसे पढ़ रहे हैं, हर एक के जीवन के अंदर एक अपने रास्ते, जिस दिशाओं को, जिस रास्तों को चलना चाहिए, आज हमको उसमें रख दिया जाएगा। हम नासरी यीशु के नाम से ये सारी बिनती प्रार्थनाओं को मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा तेरे अलावा ये काम पूरा करता हुआ नहीं देख सकते हैं। इन प्रार्थना के शब्दों में से तूने अपने आप को प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तूने अपने आप को इस प्रार्थना के शब्दों में से दिखाया कि तू ही है वो ऐसा चाहने वाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। We love you Holy Spirit. I love you so much Abba Father God. नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 1 Corinthians 11 chapter 2 verse से 34 verse तक पढ़ेंगे। Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things and keep the ordinances as I delivered them to you. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered, dishonoreth her head, for that is even all one, as if she were shaven. For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head, because of the angels. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man in the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman. But all things of God. Judge in yourselves, is it comely that a woman pray unto God uncovered?
Doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. Now in this, that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse. For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. When ye come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's supper. For in eating, every one taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken. What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh. For he that 29 verse और एक बार पढ़ेंगे. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. 30 verse से आगे पढ़ेंगे. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. And if any man hunger, let him eat at home, that ye come not together unto condemnation, and the rest will I set in order when I come. 1 Corinthians 11 verse उसका पहले कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 2 वचन से 34 वचन तक पढ़ेंगे. आराधना में सिर ढांकना. पहले कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय के 2 वचन से 34 वचन पढ़ेंगे. BSI बाइबल में से. आराधना में सिर ढांकना 2 वचन से आगे पढ़ेंगे. हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो. परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है. जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है. परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है.
यदि स्त्री ओढ़नी से न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसके ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। प्रभु भोज के विषय में मत्ती 26 अध्याय 26 से 29, मरकुस 14 अध्याय 22 से 25 और लूका 22 अध्याय 14 से 20 ये रेफरेंस वर्सेस है ब्रैकेट में दिए हुए। प्रभु भोज के विषय में 17 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों के 11 अध्याय के 17 वचन से आगे पढ़ रहे हैं। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। Psalms 142 से लेकर 145 चैप्टर्स तक पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से।
सैम्स 142 से शुरू करेंगे, किंग्स जेम्स वर्जन में से। इंट्रोडक्शन। डेविड shows that in his trouble all his comfort was in prayer with God. Maschil of David, a prayer when he was in the cave. First verse से पढ़ेंगे। I cried unto the Lord with my voice unto the Lord did I make my supplication. I poured out my complaint before him. I shewed before him my trouble. When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the way wherein I walked, have they privily laid a snare for me. I looked on my right hand, and behold, but there was no man that would know me. Refuge failed me. Refuge failed me. No man cared for my soul. I cried unto thee, O Lord. I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. Attend unto my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are stronger than I. Bring my soul out of prison, that I may praise thy name. The righteous shall compass me about, for thou shalt deal bountifully with me. Psalms 143. David prays for God's guidance and support. A Psalm of David. First verse से पढ़ेंगे। Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications. In thy faithfulness answer me, and in thy righteousness, and enter not into judgment with thy servant. For in thy sight shall no man living be justified. For the enemy hath persecuted my soul, he hath smitten my life down to the ground. He hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead. Therefore is my spirit overwhelmed within me. My heart within me is desolate. I remember the days of old. I meditate on all thy works. I muse on the work of thy hands. I stretch forth my hands unto thee. My soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah. Hear me speedily, O Lord, my spirit faileth. Hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Cause me to hear thy loving kindness in the morning, for in thee do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. Deliver me, O Lord, from mine enemies. I flee unto thee to hide me. Teach me to do thy will, for thou art my God. Thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Quicken me, O Lord, for thy name's sake, for thy righteousness' sake. Bring my soul out of trouble, and of thy mercy cut off mine enemies and destroy all them that afflict my soul, for I am thy servant. Psalms 144. David blesses God for his mercy. A Psalm of David. Blessed be the Lord my strength. First verse से पढ़ रहे हैं। Blessed be the Lord my strength, which teacheth my hands to war and my fingers to fight, my goodness and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield, and he in whom I trust, who subdueth my people under me. Lord, what is man that thou takest knowledge of him, or the son of man that thou makest account of him? Man is like to vanity, his days are as a shadow that passeth away. Bow thy heavens, O Lord, and come down. Touch the mountains, and they shall smoke. Cast forth lightning, and scatter them. Shoot out thine arrows, and destroy them. Send thine hand from above, read me,
and deliver me out of great waters, from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood. I will sing a new song unto thee, O God. Upon a psaltery and an instrument of 10 strings will I sing praises unto thee. It is he that giveth salvation unto kings, who delivereth David his servant from the hurtful sword. Read me and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood, that our sons may be as plants grow up in their youth, that our daughters may be as cornerstones polished after the similitude of a palace, that our garners may be full, affording all manner of store, that our sheep may bring forth thousands and 10,000s in our streets, that our oxen may be strong to labor, that there be no breaking in nor going out, that there be no complaining in our streets. Happy is that people that is in such a case. Yea, happy is that people whose God is the Lord. Psalms 145. David praises God for his goodness and for his special favor for the righteous. David's Psalm of Praise. First verse से पढ़ेंगे. I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and of thy wondrous works. And men shall speak of the might of thy terrible acts, and will declare thy greatness. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power, to make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations. The Lord upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Thou openest thine hand and satisfiest the desire of every living thing. The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry, and will save them. The Lord preserveth all them that love him, but all the wicked will he destroy. My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. भजन संहिता 142 से 145 अध्याय तक पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। सहायता के लिए प्रार्थना। दाऊद का मश्किल। जब वह गुफा में था, प्रार्थना। 142 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मैं यहोवा की दोहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था।
जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। मुझको बंदी गृह से निकाल के मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। छुटकारे के लिए प्रार्थना। दाऊद का भजन 143 अध्याय पहले वचन से। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसीलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकद्दमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है। उसने मुझे चोर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ। सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। सेला। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना। दाऊद का भजन 144 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांझ के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ। पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़का कर उनको तितर बितर कर दे। अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हो और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाए, जब हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो, जब हमें न विघ्न हो और न हमारा कहीं जाना हो
और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो। तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। 145 अध्याय पहले वचन से स्तुति का गान, स्तुति दाऊद का भजन। पहले वचन से पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 19 चैप्टर 11 वर्स से 19 वर्स तक। 1 सैमुअल 15 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 11 वचन से 19 वचन तक। पहले शमूएल 15 अध्याय। जब हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान अपने अकेले में पर्सनल टाइम में 2 years बाइबल रीडिंग प्लान जब हम पढ़ेंगे, व्यक्तिगत समय में हम पढ़ेंगे, हम बहुत कुछ बदलता हुआ पाएंगे अपने जीवन में। ये व्यर्थ जाने वाला रास्ता नहीं चल रहे हैं। हम उस जगह में हम पहुंच गए हैं जहां से हमको परमेश्वर कुछ बनाना चाहता है। उस मकाम तक हम आ चुके हैं और परमेश्वर हमको उस दिशा में ही आगे लेकर जाना चाहता है। इसके लिए हमने व्यक्तिगत समय में ये बाइबल रीडिंग को पूरा करना है। जब हम ऐसा करते हुए 2 साल के अंत में पहुंचेंगे, हम पाएंगे कि हमको एक अलग समझ, ज्ञान, बुद्धि प्राप्त हो चुकी है, जहां हम कुछ ऐसा काम करना शुरू करेंगे जो परमेश्वर के मन में रखा हुआ था हमारे लिए कि हम वैसे काम करें। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है, क्योंकि वो हमको ऐसे प्रकार से बना हुआ इस्तेमाल करना चाहता है। वो खुद हमसे ऐसा प्रेम करता है माय डियर फ्रेंड्स। वो खुद होकर चाहता है हमको कि हम उस डेस्टिनी में पहुंचे। हमको नहीं पता है ऐसी जगह में वो हमको रखना चाहता है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पोजीशन मायने करता है। यीशु मसीह को भी हाई प्रीस्ट बनाया परमेश्वर ने, ऊंचे पद पर रखा। सारे एंजल्स के जो नाम थे और उनके नाम में जो सामर्थ है, उन नाम और उन सामर्थ से भी ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह को दिया गया।
यानी परमेश्वर ने उसको वैसा काम सौंपा, उस काम के अनुसार उसको नाम, पोजीशन और अथॉरिटी, पावर दिया। हमको आत्मा के जगत, हमारा जगत होना चाहिए, वहाँ हमारा निवास, हमारा रहना, उठना, बैठना ऐसा अलौकिक हो जाना चाहिए कि हम हैरान रह जाएंगे जब हम उसमें अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो। ओके, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर जो इस पृथ्वी के ऊपर है, ये आपको वो सब देखने नहीं देता है। वही कारण है कि हम आपको आग्रह करते हैं कि आप हमारे पीछे पीछे, हमारे साथ साथ चलते रहिए, वचन के आधार से अपने जीवन को बदलते रहने दीजिए, ताकि आपकी जो असली मंजिल है, आत्मा के जगत का पोजीशंस जो है, वो आपको मिल सके। दैट्स ऑल। और कुछ नहीं है जिद हमारी आपके पीछे, इतना जिद लगाकर आपको आगे बढ़ाने का हमारे अंदर ऐसा कोई और मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर जो मिट्टी के हैं वो सिर्फ मिट्टी की बातों के ही प्रेम में बने रहते हैं। अच्छा दिखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा उठना, अच्छा बैठना, अच्छी पोजीशंस, अच्छे पृथ्वी के व्यवहार, सब कुछ जो कुछ भी शरीर को पसंद आता है वही सब कुछ में पड़े रहना उसको लगता है, लेकिन वो व्यर्थ जाने वाला है। इसके लिए आपको पता नहीं है कि ये व्यर्थ में समय जाने से अच्छा है कि हम आत्मा के जगत का जो हमारा स्थान परमेश्वर चाहता है, क्योंकि इब्रानी में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने वो काम मिट्टी में रहते हुए पूरा किया। जब वो मिट्टी का शरीर होकर आया था इस पृथ्वी के ऊपर, वो मनुष्य का सा शरीर लिए हुए आया था। मनुष्य का शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना है। तो वो जो शरीर लेकर इस मिट्टी के रूप में आया हुआ था, तो उसने उसका काम पूरे विश्वास योग्यता से पूरा किया। उसने सही ढंग से वही किया जो परमेश्वर का वचन कह रहा था उसको। ओके, उसका कंप्लीट मृत्यु तक का आज्ञा पालन ने उसको वो ऊंचा स्तर दे दिया, वो ऊंचा पद दे दिया जो अब परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर वो राज्य कर रहा है। ओके, तो ये मिट्टी के शरीर में रहते हुए ही हमको आत्मा के जगत में कौन सा पोजीशन चाहिए, उस पोजीशन, उस डेस्टिनी के हिसाब से ही हमको बहुत बड़ी मेहनत है माय फ्रेंड्स। हम उसको भूल जाते हैं और हमको लगता है कि ये बस 2 साल के बाइबल रीडिंग है, हम पढ़ रहे, नहीं, हम वो पोजीशन के लिए तैयार हो रहे हैं। इस अवसर को, इस अवधि को कभी नहीं खोना है, हमने इसमें बढ़ते जाना है और निश्चित हमने इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, हमको जो तू आशा दिखाया है खुदा परमेश्वर, वो तू कभी निराश नहीं करेगा, तेरा वचन कहता है। तू हमें परमेश्वर इस मिट्टी के कमज़ोर अवस्था में भी होते हुए तेरे वचन के आज्ञा पालन में लेकर चलने का अनुग्रह देता है, और यही अनुग्रह है कि हम इन बातों को यहाँ पर बोल पाते हैं। ये सारा सब कुछ पवित्र आत्मा अपनी ओर से तू पूरा कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं और चाहते हैं कि हम में से कोई पीछे ना रहे, सब कोई परमेश्वर पिता आपके ठहराए हुए स्थान तक पहुंचते रहे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।